آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ AMC انتخابات کے لیے آج دوسرے دن 1354 افراد نے حاصل کیے امیدواری فارم، جبکہ 2 امیدواروں نے داخل کروائے اپنے نامینیشن۔ امیدواری فارم کی تقسیم و قبول کرنے کی آخری تاریخ 30 دسمبر۔ شیو سینا ادھو گروپ کے شہر پرمکھ کے BJP کا دامن تھامنے کے بعد مہاراشٹر نو نرمان سینا کے بھی سینکڑوں ورکرز چل پڑے اسی راستے پر۔ منسے کے ضلع صدر بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ہو گئے شیو سینا شندے گروپ میں شامل، مگر کیا دل بدلنے والوں کو مل پائے گا سیاسی فائدہ؟ شہریان کا سوال۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے بچوں میں جمہوریت کے اقدار پروان چڑھانے سینٹرل پرائمری اسکول انتظامیہ نے اٹھایا اہم قدم، بیلٹ پیپر کے ذریعے لیے اسٹوڈنٹس کونسل کے انتخابات۔ اور وہیکل چوروں پر شکنجہ کسنے میں کرائم برانچ پولیس کو ملی ایک بڑی کامیابی، 2 سارق گرفتار، 12 لاکھ روپے مالیت کی 14 مسروقہ موٹر سائیکلیں بھی برآمد۔ کئی اور معاملات حل ہونے کا ہے امکان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ میونسپل انتخابات کے پیش نظر آج دوسرے دن 1354 نامینیشن فارمز تقسیم کیے گئے، جبکہ 2 خواہش مند امیدواروں نے اپنے نامینیشن جمع کروائے۔ واضح ہے کہ AMC انتخابات کے لیے الیکشن پروگرام کے مطابق گزشتہ کل یعنی 23 دسمبر سے نامینیشن فارمز کی تقسیم اور قبول کرنے کا عمل شروع کیا جا چکا ہے، جس کے لیے 9 RO آفس قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 1816 نامینیشن فارمز تقسیم کیے گئے تھے، جبکہ ایک بھی فارم جمع نہیں کروایا گیا تھا۔ آج دوسرے دن 1354 نامینیشن فارمز تقسیم کیے گئے، جبکہ 2 خواہش مند امیدواروں نے اپنے نامینیشن متعلقہ RO دفاتر میں جمع کروائے۔ آج جو 2 نامینیشن فارم موصول ہوئے ہیں، ان میں ونچت بہوجن آگھاڑی سے ایک امیدوار نے RO آفس 1 میں اپنا نامینیشن داخل کیا ہے، جبکہ دوسرا نامینیشن کانگریس پارٹی کے ایک امیدوار نے۔ اس طرح سے اب تک 2 دنوں میں جملہ 3170 نامینیشن فارمز تقسیم کیے گئے، جبکہ صرف 2 نامینیشن جمع کروائے گئے ہیں۔ جالنہ میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات میں حصہ لینے اب تک 509 خواہش مند افراد نے نو ڈیوز سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ یہ اطلاع متعلقہ محکمے سے موصول ہوئی ہے۔ جالنہ شہر میں میونسپل کارپوریشن الیکشن کے خواہش مند امیدواروں کی بڑی تعداد بے باکی سرٹیفکیٹ کے لیے میونسپل دفتر کا رخ کر رہی ہے۔ اب تک 509 امیدواروں نے واجب الادا رقوم ادا کر کے بے باکی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، جس سے کارپوریشن کو تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا فنڈ ملا ہے۔ بلدیاتی انتخابات لڑنے کے لیے تمام میونسپل ٹیکس ادا کرنا لازمی ہے۔ اسی وجہ سے کئی برسوں سے بقایا پان پٹی، نل پٹی اور دیگر ٹیکس ادا کرنے کے لیے امیدواروں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے مطابق گزشتہ 8 دنوں میں تقریباً 60 لاکھ روپے کا ٹیکس وصول کیا گیا ہے۔ انتخابی عمل کے پیش نظر بلدیاتی دفاتر میں سرگرمیاں تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ مہاراشٹر وقف بورڈ میں رجسٹرڈ مساجد، درگاہ، قبرستان اور دیگر اداروں کا امید پورٹل پر اندراج کروانے کے لیے وقف ٹریبونل نے 6 ماہ کی مہلت دی ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں وقف کے تحت رجسٹرڈ مساجد، درگاہیں، قبرستان اور دیگر اداروں کے لیے امید پورٹل پر اندراج کی آخری تاریخ میں 6 ماہ کی توسیع دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ وقف ٹریبونل کی جانب سے سنایا گیا ہے، جسے مہاراشٹر اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین سمیر قاضی اور ان کی ٹیم کی بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 5 دسمبر 2025 تھی، تاہم متعدد ادارے اندراج سے محروم رہ گئے تھے۔ ریکارڈز کی عدم دستیابی، کاغذات کی کمی اور امید پورٹل پر تکنیکی مسائل کے باعث کئی وقف ادارے بروقت رجسٹریشن نہیں کر سکے تھے۔ اسی تناظر میں وقف بورڈ نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اگرچہ تاریخ بڑھانے سے انکار کیا، مگر وقف ٹریبونل نے رجوع کی اجازت دے دی تھی۔ وقف ٹریبونل میں دائر درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے اداروں کو 6 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ سمیر قاضی نے کہا کہ مہاراشٹر میں وقف پراپرٹیز رجسٹریشن میں ملک میں دوسرے نمبر پر ہے، مگر ہر ادارے کا اندراج یقینی بنانا ضروری ہے۔ انہوں نے متولیوں، ٹرسٹیوں سے اپیل کی ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور فوری طور پر رجسٹریشن مکمل کریں۔ وقف بورڈ نے خبردار کیا ہے کہ اندراج نہ کرنے پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔
वक्फ ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में ये भी वाज़ेह किया कि अगर इस मुद्दत के दौरान पोर्टल में तकनीकी खराबी या बंदिश आती है तो मुताल्लिका मुद्दत में मज़ीद तोसी की जा सकती है। तुम्हारे दिल में क्या है इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन तुम्हारा अंदाज़ बयान मुनासिब नहीं है। इस तरह का जवाब MLC संजय किनेकर ने शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान और रियासती वजीर संजय शिरसाट के बयान पर दिया। वजीर बराए समाजी इंसाफ के बयान का बीजेपी ने सख्त नोटिस लेते हुए साफ अल्फाज में कहा है कि किसी भी दबाव के आगे झुका नहीं जाएगा। बीजेपी रहनुमाओं का कहना है कि संजय शिरसाट के बयान में कोई हकीकत नहीं है और पार्टी के कायदीन और कारकुनान के बारे में जो बातें कही गई हैं वो सरासर गलत हैं। बीजेपी ने निगरान वजीर की ज़ुबान पर भी एतराज़ जाहिर किया है। बीजेपी रहनुमा किनेकर ने कहा कि आप महायुति के सीनियर और कोर कमेटी के जिम्मेदार लीडर हैं, ऐसे में इस तरह के बयान देना मुनासिब नहीं है। यूती में दोनों जमातों के दरमियान तयशुदा ज़ाब्ते अखलाक मौजूद है जिसकी पाबंदी सब पर लाजिम है। पार्टी ने इत्तेहाद के उसूलों पर अमल करने पर जोर दिया है। बीजेपी का कहना है कि अगर निचली सतह के ओहदेदार किसी नशिस्त पर दावा कर रहे हैं तो उसका हल बाहमी गुफ्त शनीद से निकाला जाना चाहिए। किनेकर ने कहा, आपके दिल में क्या है हमें मालूम नहीं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल की गई ज़ुबान दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि किसी भी दबाव में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बीजेपी ने दो टोक अंदाज में कहा है कि इत्तेहाद का धर्म निभाते हुए हिंदू वोटों की तकसीम रोकना ही पार्टी की बुनियादी पॉलिसी है और इस मामले में मसालिहत का रास्ता ही अपनाया जाएगा। माननीय पालकमंत्री संजय भाऊ शिरसाट यांनी जे वक्तव्य केलं त्या वक्तव्यामध्ये कोणतंच तथ्य नाहीये। भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकारी नेत्यांबद्दल जे आपण बोललात ते अतिशय चुकीचं आहे। आपण महायुतीतले नेते आहात, पालकमंत्री आहात, कोर टीम मधले जबाबदार नेते आहात। आपल्याला असं बोलणं योग्य नाहीये आणि त्यामुळे आपल्या दोन्ही भाजप शिवसेना महायुतीमध्ये काही आचारसंहिता आहे या युती करण्याबद्दलच्या, त्या आचारसंहिता आपण पाळल्या पाहिजे। आपण एकमेकांच्या नेत्यांबद्दल असं वक्तव्य करणं योग्य नाहीये। आपण ज्या ज्युनियर टीम ठरवून दिल्या त्या ज्युनियर टीम अजूनही चर्चा करतायत प्रभागाबद्दल, युतीबद्दल, आणि त्यांच्यामध्ये युती जर आपली फिसकटली तर आपण सिनियर टीम बसणार आहोत आणि जे काही आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्राबल्याचे प्रभाग आहेत त्या प्रभागावर दावा दाखवण्याचं काम ज्युनियर टीम करत असेल तर त्याचं खऱ्या अर्थाने आपण दोघं बसून त्याच्यामध्ये समझोता होऊ शकतो। पण त्याआधीच तुमच्या मनात काय दडलं हे माहीत नाही आम्हाला, परंतु तुम्ही जी भाषा भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकारी नेत्यांबद्दल बोलतात ते चुकीचं आहे आणि तुमच्या प्रेशरला कोणत्याच प्रकारे तुमच्या दबावाला खाली येणार नाही हे तुम्ही लक्षात घ्या। निश्चितपणे आपण समंजसाने युती करूया, आम्हाला युतीचा धर्म पाळायचा आहे। निश्चितपणे या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हिंदू मतांमध्ये विभाजन होऊ नये ही भूमिका भारतीय जनता पार्टीची आहे आणि त्यामुळे तुम्ही किती काही बोलला तर आमची भूमिका ही प्रामाणिकपणे आहे आणि त्यामुळे त्या भूमिकेला आपणही खऱ्या अर्थाने समंजसपणे घेतलं पाहिजे, एवढंच यावेळेस सांगेन। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैकड़ों वर्कर्सों ओहदेदारान ने आज बीजेपी में भी शमूलियत इख्तियार कर ली। ये पार्टी शमूलियती तकरीब औरंगाबाद में वाक़े बीजेपी के डिवीजनल दफ्तर में मुनक़िद हुई। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर ममलिकत भागवत कराड़, वज़ीर काबीना अतुल सावे, ज़िला शहर सदर किशोर शितोड़े, इलेक्शन इंचार्ज समीर राजूरकर, सुरेश बोराड़कर, प्रशांत देसरडा, राहुल दांडगे और मनदीप राजपूत मौजूद थे। मानसे के अहम ओहदेदारों ने बीजेपी पर एतमाद जाहिर किया। मानसे के मगरबी असम्बली हलक़े के शहर सदर गुज्जन गोड़ा पाटिल और मशरक़ी असम्बली हलक़े के शहर सदर आशीष सुरड़कर के साथ कई कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। नए शामिल होने वाले कारकुनों ने कहा कि बीजेपी की तरक्की पसंद पॉलिसियों पर भरोसा करते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। तकरीब से खिताब करते हुए बीजेपी कायदीन ने कारकुनान का खैर मकदम किया। वज़ीर काबीना अतुल सावे ने कहा कि बीजेपी आम लोगों की पार्टी है जहां हर कारकुन को काम करने का मौका मिलता है। वहीं भागवत कराड़ ने कहा कि हिंदुत्व के नज़रिए पर यकीन रखते हुए आप सब ने बीजेपी का रास्ता चुना है और आने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात में पार्टी को कामयाब बनाना सभी की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर सदर सुमित खाम्बेकर ने अपने चंद साथियों के साथ एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया। ये इत्तला खुद शिवसेना के सदर एकनाथ शिंदे ने दी। छत्रपती संभाजीनगरचे मनसेचे जिल्हा प्रमुख सुमित खांबेकर आणि मराठवाड्यातले 4 जिल्हाध्यक्ष मनसे यांच्याबरोबर ते देखील आता प्रवेश करतायत। त्यांचंही मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो।
छत्रपति शिवाजी महाराज की एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोरदार टाळ्या आपण प्रवेशाचं स्वागत करूया। जायकवाड़ी की 100 MLD स्कीम के तहत पानी लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 2 ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के सबब फिलहाल कुछ पंप बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से शहर में पानी सप्लाई गैप में फिर इजाफा हो गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली के तकनीकी खलल के बाइस वाटर सप्लाई स्कीम के कई पंप बंद हो गए हैं, जिसका बराह रास्त असर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की तकसीम पर पड़ेगा। डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक जायकवाड़ी वाटर सप्लाई स्कीम के तहत चलने वाले बिजली के फीडर्स में खराबी पैदा होने के सबब पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है। प्रेस नोट में बताया गया है कि इससे कबल जहां 6 पंप मुकम्मल सलाहियत के साथ काम कर रहे थे, अब वहां सिर्फ 4 पंप ही चल रहे हैं, जबकि एक कम सलाहियत वाला पंप फ़ाल है जो नाकाफ़ी साबित हो रहा है। इसी तरह ढोरकिन पंप हाउस से चलने वाले 3 पंप भी मुतासिर हुए हैं। बिजली के 220 केवी फीडर में खराबी और ट्रैपिंग के बाइस मुकम्मल वाटर सप्लाई सिस्टम पर असर पड़ा है। महकमे के मुताबिक नए ट्रांसफार्मर और बरक़ी आलात की मरम्मत का काम जारी है और मरम्मत मुकम्मल होने के बाद ही पानी की सप्लाई मामूल पर आ सकेगी। इस दौरान शहर के कई हिस्सों में पानी की फराहमी ताख़ीर से या कम दबाव के साथ होने का इम्कान है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहरियान से अपील की है कि वह पानी का इस्तेमाल एहतियात से करें और इंतज़ामिया से ताउन करें। रेलवे स्टेशन इलाके से गुजर रही पाइपलाइन पर मौजूद वाल्व का गढ़ा शहरियान की सेहत के लिए ख़तरा साबित हो सकता है, क्योंकि इस गड्ढे में शराबी अफराद पेशाब करने लगे हैं, जो वाल्व के ज़रिए पाइपलाइन में दाखिल होकर पानी को आलूदा कर सकता है, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया की इस जानिब कोई तवज्जो नहीं है। शहर के रेलवे स्टेशन के मसरूफ़ तरीन रास्ते पर शहरियान की सलामती एक बार फिर ख़तरे में पड़ गई है। पानी की लाइन के लिए खोदा गया गड्ढा खुला होने की वजह से हादसात का खदशा बढ़ता जा रहा है। रेलवे स्टेशन रोड के ऐन दरमियान मौजूद पानी के वाल्व का गड्ढा कई दिनों से खुला पड़ा है, जिसके बाइस गाड़ी चलाने वालों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर रात के वक्त रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम न होने की वजह से इस मकाम पर हादसात का ख़तरा मज़ीद बढ़ता जा रहा है। मकामी शहरियान के मुताबिक इस गड्ढे के बाइस सफाई का मसला भी संगीन हो गया है। रात के औकात में शराब नोश अफराद यहाँ पेशाब करने लगते हैं, जिससे इलाके में गंदगी और शदीद बदबू फैल रही है। इस सूरत हाल से न सिर्फ आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हो रहा है, बल्कि शहरियान में खौफ का माहौल भी पैदा हो गया है। शहरियान की शिकायत के बावजूद मुताल्लिका महकमे की खामोशी सवालिया निशान बनी हुई है। तालिबे इल्मी के ज़माने ही से बच्चों में जमहूरी तर्ज पर अपने नुमाइंदे मुंतखब करने की तरबियत देने के मकसद से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात मुनक़िद किए गए। वाज़ेह है कि दस्तूर हिंद ने हर शहरी को राय दही का हक़ बहाल किया है, जिसके ज़रिए वो अपनी पसंद के नुमाइंदे को मुंतखब करने के लिए वोट करता है। इन दिनों हमारे मुल्क में राय दही के लिए EVM मशीनों के ज़रिए वोट कास्ट किए जाने का तरीक़ा राइज है। तलबा में जमहूरी इक़दार को परवान चढ़ाने और उन्हें इंतखाबी अमल से वाकिफ़ करवाने की गर्ज से आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 में स्टूडेंट काउंसिल इंतखाबात मुनक़िद किए गए, जिसमें तलबा को आमला का इंतखाब करने के साथ साथ सदर आमला के इंतखाब के लिए भी राय दही का मौका फ़राहम करवाया गया और इंतखाबात इसी तर्ज पर लिए गए जिस तरह से असम्बली, पार्लियामेंट या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन लिए जाते हैं। इस इलेक्शन के लिए तलबा ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट्स का किरदार बखूबी निभाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज महानगर पालिका केंद्रीय शाला किराड़पुरा नंबर 1 में स्टूडेंट काउंसिल का जो है तो इलेक्शन लिया जा रहा है, जिसमें जो है तो 6 से 10 तक के जो है तो नुमाइंदे चुने जा रहे हैं। हमारे स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल का इंतखाब महज एक सरगर्मी नहीं बल्कि जमहूरी क़दरों की अमली तरबियत है। इस इंतखाब के ज़रिए तलबा वोटिंग का अमल, ज़िम्मेदारी, क़यादत और इज्तिमाई फ़ैसला साजी सीखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे तलबा आज से ही एक ज़िम्मेदार शहरी नहीं बल्कि अपने हक़ राय दही की क़दर करें और ईमानदारी से वोट डालें। ये अमल उन्हें मुस्तक़बिल में बेहतर लीडर और बाशऊर शहरी बनाने में मददगार साबित होगा। हम तमाम तलबा को पुरअमन, मुनसिफ़ाना और बामक़सद वोटिंग
करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारी ये जो हम एक्टिविटी ले रहे हैं, ये हमारी एक्टिविटी स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल प्रकल्प अंतर्गत लिए जा रही है। हमारे स्कूल जो है तो स्मार्ट बन चुके हैं और इसका जो है तो श्रेय जो है महानगर पालिका आयुक्त जी श्रीकांत सर को जाता है कि स्मार्ट स्कूल में जो एक्टिविटीज़ ली जाने वाली हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ पर हम लोग अमल कर रहे हैं और ये उसी का एक पार्ट है स्टूडेंट काउंसिल का जो है तो चुनाव करना। बच्चों के लिए तमाम जो है तो हमने उनको प्रिपेयर किया है, उनको तैयार किया है इसके लिए, और बच्चे जो है तो आज तैयार हैं। अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करें और सही नुमाइंदे को चुनें और मुनसिफाना चुनाव हो। अगर महायुति नहीं होती है तो हमारे लिए दूसरे सभी रास्ते खुले हैं। ये इत्तला जालना के एनसीपी अजित पवार ग्रुप के जिला सदर अरविंद चौहान ने दी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, आइए देखते हैं इस ज़िमन में खुसूसी रिपोर्ट। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में महायुति के तौर पर मुकाबला करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर इत्तेहाद न हुआ तो हमारे लिए तमाम ऑप्शंस खुले हैं। ये बात ज़िला सदर अरविंद चौहान ने कही। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र अजित पवार की क़ियादत वाली एनसीपी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जारी हैं। जालना शहर में वाक़े पार्टी दफ्तर में इंटरव्यूज़ का अमल चल रहा है। ज़िला सदर अरविंद चौहान के मुताबिक तकरीबन 125 ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। उन्होंने बताया कि महायुति के सिलसिले में शिवसेना शिंदे ग्रुप की जानिब से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला है, ताहम बीजेपी की जानिब से अब तक मस्बत जवाब नहीं आया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी की पहली तरजीह महायुति के तौर पर इलेक्शन लड़ना है, लेकिन अगर इत्तेहाद मुमकिन न हुआ तो तमाम मुतबादिल रास्ते खुले रखे गए हैं। आपण वर येतानीच पाहिलं असेल की इच्छुकाची प्रचंड संख्या आहे। इच्छुक लोक वाजत गाजत येत आहेत राष्ट्रवादी, आणि एक चांगलं वातावरण, राष्ट्रवादीमय वातावरण या शहरामध्ये येणाऱ्या 2-4-5 दिवसात अधिकच पाहायला आपल्याला मिळेल एवढंच सांगतो। युतीचं आम्ही स्वतः तटकरे साहेबांनी फोन केल्याप्रमाणे माननीय रावसाहेब दानवे साहेबांना जाऊन भेटलो, त्यांना विनंती केली की लवकरात लवकर बैठका घेण्यात याव्या, आम्हाला चित्र क्लिअर करावं। माननीय खोतकर साहेबांशी बोलणं झालंय, खोतकर साहेब सकारात्मक बोलतायत, पण भाजपकडून अजूनही सकारात्मक आता प्रतिसाद नाही। पण त्या दिवशी बावनकुळे साहेब बोलताना म्हणले की 2 तारखेला अरविंदराव मी तुमच्या घरी चहाला येतो, म्हणजे त्यांची कुठेतरी इच्छा सकारात्मक आहे असं दिसतंय। भाजप महायुती म्हणून जर नाही लढलं तर तुम्ही आणि शिंदे सेना सोबत लढण्याची चर्चा आहे। आम्ही तर आमची भूमिका दोन्ही पक्षांनी क्लिअर केली की आम्ही सोबत आहोत, त्याच्यामुळं आम्ही सोबतच लढणार एकत्र। ताल्लुका उमरगा के ये नेगरू ग्राम पंचायत के तहत गाँव में सफाई इंतजामात दुरुस्त करने के मुतालबे पर मकामी साकिनान ने हड़ताल शुरू की थी, जो ग्राम पंचायत इंतजामिया की जानिब से तहरीरी तयक्कुन देने के बाद ख़त्म कर दी गई। उमरगा ताल्लुक़े के यनेगुर गाँव में सफाई न होने, ड्रेनेज नालियों के बंद होने और बढ़ती बदबू समेत मुख्तलिफ शहरी मसाइल के हल के लिए मुतालबे को लेकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ज़िला आमला रुकन और तनाज़ा मुक्ति कमेटी के नायब सदर अप्पू हिप्परगे ने ग्राम पंचायत दफ्तर के सामने आमरन अनशन शुरू किया था। उनका कहना था कि गांव के अशोकनगर ज़िला परिषद स्कूल इलाका, हनुमान मंदिर रोड, करीब सवेश्वर मठ, मुस्लिम कब्रिस्तान, विट्ठल मंदिर और हफ्तावार मवेशी बाजार जैसे मकामात पर गंदगी, बंद नालियाँ, सड़कों पर गंदा पानी और ख़राब बिजली सप्लाई जैसे मसाइल मुसलसल मौजूद हैं। ग्राम पंचायत की जानिब से तहरीरी वादा मिलने के बाद एहतजाज ख़त्म किया गया। ग्राम सेवक लक्ष्मण कामले और नायब सरपंच बाबा गायकवाड़ ने तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई कि 22 जनवरी 2026 तक तमाम मसाइल का हल मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद आमरन अनशन वापस ले लिया गया। इस मौके पर शरण गावकरे, मोहन माली, सिद्धेश्वर स्वामी, मोरुम बाजार कमेटी के डायरेक्टर भीमशंकर स्वामी, सतीश मोदकाना, सागर पाटिल और ग्राम पंचायत के मुतादिद अराकीन समेत बड़ी तादाद में शहरियान मौजूद। पोषण कशा संदर्भात होतं? आजचं उपोषण हे आमचं गेल्या 6 महिन्यापासून ग्रामपंचायतीला पाठपुरावा करतो आहे। आम्ही लेखी अर्ज पण दिलेले आहेत, तोंडी पण सांगितलेले आहे। 2 वेळा आम्ही ग्रामपंचायतीला टाळे लावले आणि 1 वेळा आम्ही घागर मोर्चा व गटरी संदर्भात उपोषण केलं इथं। तरी पण त्यांनी वारंवार आम्हाला लेखी देऊन पण केले नाहीत, म्हणून आज आम्हाला नाविलाज इथं ग्रामपंचायत समोर अमरून उपोषण करावं लागलं। गावामध्ये अनेक ठिकाणी गटरी तुंबलेले आहेत, ते तुंबून गटरीचं पाणी काही नागरिकांच्या घरी गेलेलं आहे, मध्ये गेलेलं आहे घरामध्ये, त्यांचं नुकसान झालेलं आहे। परवा अतिवृष्टी
म्हणजे ज्या नागरिकांचं नुकसान झालेलं आहे त्यांना नुकसान भरपाई भेटली नाही. खरोखरच ज्यांचे नुकसान भरपाई झाले त्यांना भेटलेलं नाही. आमची एवढीच मागणी होती की याची प्रमुख मागणी गावातील साफसफाई व गटरी साफ करणे आणि त्या लोकांना हे भेटलं नाही शासनाचं अनुदान ते लवकरात लवकर तात्काळ भेटावं ही आमची मागणी होती प्रमुख. औरंगाबाद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी के चेयरमैन राधा कृष्ण पठारे ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। औरंगाबाद ज़राई पैदावार बाजार कमेटी के चेयरमैन राधा कृष्ण पठारे ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अपने तहरीरी बयान में उन्होंने कहा कि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, इसी नीयत के तहत उन्होंने ये फैसला लिया। पठारे ने अपने दौरे सदारत के दौरान किसानों के मसाइल, बाजार के इंतजामात और शफाफ निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो दी। ताहम उनके इस्तीफे के बाद अब बाजार कमेटी में नई क़ियादत के इंतखाब को लेकर सरगर्मियाँ तेज़ होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस फैसले के बाद सियासी जमातों की नज़रें आने वाले चेयरमैन के इंतखाब पर मरकूज़ हो गई हैं। ज़राई पैदावार बाजार कमेटी में होने वाली इस तब्दीली को मुस्तक़बिल की सियासत के तनाजुर में अहम माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि राधा कृष्ण पठारे के बाद ये जिम्मेदारी किसके सुपुर्द की जाती है। नमस्कार, मी राधाकिशन पठारे, सभापती उच्चतम बाजार समिती छत्रपती संभाजीनगर। मी 2017 ते 2020 पर्यंत सभापती होतो। त्याच्यानंतर 24ला जे निवडणुका झाल्या 2023ला, त्यामध्ये सुद्धा आमचं पूर्ण पॅनल येऊन सन्माननीय बागडे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी मी पुन्हा सभापती झालो। मला 2.5 वर्षे आता पूर्ण होत आहे आणि आजचा राजीनामा देण्याचं कारण असं आहे की दुसऱ्या सहकार्याला बी त्या ठिकाणी संधी मिळाली पाहिजे, या दृष्टिकोनातून मी आज राजीनामा देत आहे। माझ्या जवळपास मागच्या 3 वर्षाच्या काळात 17 ते 20 या दरम्यान मी जवळपास 90 कोटीची कामं त्या ठिकाणी केली आणि आताही ह्या 24 ते 2023 ते आता 25 या कार्यकाळातही जवळपास मी 50 कोटीची कामं केली। त्यापैकी 30 कोटीची कामं पूर्ण झाली, 20 कोटीची कामं या ठिकाणी चालू आहे आणि मला मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी काम करायला संधी मिळाली। पद मिळाल्यानंतर ती शोभेची वस्तू नसते, ते कामकाजाच्या माध्यमातून ही जनतेसमोर आपण कामं उभी करायची असते आणि ती आम्ही काम त्या ठिकाणी करण्याचा प्रामाणिकपणानं प्रयत्न केला आणि ती आज तालुकाभर जिल्हाभर आमची बाजार समिती गाजते। त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचं अश्वरूढ पुतळा असेल, शेतकरी बाजार असेल, त्या ठिकाणी फुल मार्केट असेल, मक्का संकलन केंद्र असेल, कृषी शॉपिंग असेल, कांदा मार्केट असेल, शेतकऱ्याच्या मुलासाठी वसतिगृहाची योजना असेल, त्या ठिकाणी करमाड येथे उपबाजारपेठ उभारण्याचं काम असेल, पिंपरीचं उपबाजारपेठ उभारण्याचं काम असेल, लाड सांगलीचं असेल, दुष्काळामध्ये चारा छावणीचा विषय असेल, ही सगळी कामं माझ्या कार्यकाळामध्ये झाली आणि ही सगळी व्यवस्था मला त्या ठिकाणी उभी करता आली। त्याचं एक मोठं समाधान या माध्यमातून आहे आणि भविष्यातही मी शेतकऱ्यासाठी अहोरात्र काम करण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि नेहमी सतत करीत राहणार आहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने रिसर्च स्कॉलर तृप्ति हंडीबाग के अंग्रेजी जुबान में दाखिल करदा तहकीकी मकाले को मंजूर करते हुए उन्हें पीएचडी की डिग्री तफवीज़ की है। उमोरगा के आदर्श महाविद्यालय से वाबस्ता डॉक्टर सुधीर मठपति की रहनुमाई में तृप्ति हंडीबाग कदम ने द डेलिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी इन द सेलेक्टेड नॉवेल्स ऑफ रिचर्ड राइट एंड ऑलिस वॉकर अ कंपैरेटिव स्टडी के मौजू पर अपना तहकीकी मकाला पेश किया था। इस तहकीकी मकाले की कामयाब मंजूरी के बाद यूनिवर्सिटी की जानिब से उन्हें पीएचडी की सनद से नवाजा गया है। तृप्ति हंडीबाग कदम की इस नुमाया कामयाबी पर वाइस चांसलर डॉक्टर वाल्मीकि सरवड़े, शोबा अंग्रेज़ी के सरबराह डॉक्टर मुस्तजीब खान, डॉक्टर यशवंत हंडीबाग, प्रोफेसर लक्ष्मण कदम, एडवोकेट आनंद देवकटे, प्रोफेसर रमन बिड़वे और प्रोफेसर सादिक कुरैशी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने उन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। तालीमी हलकों में तरबियती हंडीबाग कदम की इस कामयाबी को काबिल फ़ख्र करार दिया जा रहा है। सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए 2 व्हीकल चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 14 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। ये इत्तला पुलिस महकमे से मौसूल हुई है। पुलिस राय का कहना है कि शहर में 2 व्हीलर चोरी की बढ़ती वारदातों पर काबू पाने की गर्ज डीसीपी क्राइम रत्नाकर मावले की हिदायत पर क्राइम ब्रांच के अफसरान और मुलाजमीन मुतहर्रिक हो गए हैं और क्राइम दस्ते ने व्हीकल चोरी के मामले में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 14 मोटरसाइकिलें चुराने का एतराफ़ कर लिया है। महरूस अफराद की निशानदही पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने 14 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं, जिनकी मालियत 12 लाख रुपये बताई जा रही है,
जिन में से 2 मोटरसाइकिलें हरसूल इलाके से चुराई गई थीं, जबकि सिडको इलाके से 10 और दीगर इलाकों से 2। इस तरह से ये 14 गाड़ियां चोरी हुई थीं। पुलिस ने ये तमाम मसरूक़ा गाड़ियां बरामद कर ली हैं, जिनमें 10 होंडा शाइन कंपनी की हैं और 4 दीगर कंपनियों की है। गुन्हे शाखेच्या पथकाला सन्मान्य पोलीस आयुक्त सरांनी आदेश दिले होते की उघड मोटरसायकल चोरीचे गुन्हे उघडकीस आणण्यासंदर्भात. त्या अनुषंगानं गुन्हे शाखेच्या पथकानं काल एकूण 14 मोटरसायकल जप्त करण्यात आले. त्यामध्ये 2 आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये होंडा शाईन आणि इतर मेकच्या गाड्या आहेत त्यात 14. त्यात 303 BNS प्रमाणे हरसूल आणि सिडको पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल आहेत आणि एकूण 14 मोटरसायकल जप्त केलेले आहेत आणि त्या आरोपींना दोघांना अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास चालू आहे. AMC के एक रिश्वतखोर क्लर्क अरविंद दशरथ आदमाने को ACB अमले ने 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह हो कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने स्मार्ट सिटी ऑफिस में कामयाब ट्रैप कार्रवाई अंजाम दी। इस कार्रवाई में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के क्लर्क रविंद्र दशरथ आदमाने, जिनकी उम्र 41 साल है, को रिश्वत लेते हुए हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम पर इल्ज़ाम है कि उसने दुकान पर आयद भारी कारोबारी टैक्स कम करने के इवज़ रिश्वत का मुतालबा किया था। शिकायत कुनिंदा की गुलमंडी इलाके में पूजा के सामान की दुकान है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जायद प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस मिलने के बाद मुलजिम ने दुकान की पैमाइश करके 7 साल का 3 लाख रुपये टैक्स लगाने की बात कही। बादअज़ां टैक्स कम करके 20,000 करने के बदले 30,000 रुपये रिश्वत तलब की गई। रिश्वत न देना चाहिए पर शिकायत कुनिंदा ने इंसदाद बदउनवानी दफ्तर से रुजू किया। शिकायत की तस्दीक के बाद 23 दिसंबर 2025 को 5 गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। मुलजिम ने तयशुदा रकम में से 10,000 रुपये रिश्वत के तौर पर कबूल किए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई जारी है। मुलजिम के कब्जे से 10,000 रुपये नकद और एक मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है। बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में इंसदाद बदउनवानी एक्ट 1988 की दफ़ा 7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अवाम से अपील की है कि रिश्वत की किसी भी मांग की सूरत में फौरी तौर पर टोल फ्री नंबर 1064 या व्हाट्सएप नंबर 7720 89 10 64 पर इत्तला दें। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। AMC इंतखाबात के लिए आज दूसरे दिन 1354 अफराद ने हासिल किए उम्मीदवारी फॉर्म, जबकि 2 उम्मीदवारों ने दाखिल करवाए अपने नॉमिनेशन। उम्मीदवारी फॉर्म की तकसीम व कबूल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर। शिवसेना उद्धव ग्रुप के शहर प्रमुख के बीजेपी का दामन थामने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के भी सैकड़ों वर्कर्स चल पड़े इसी रास्ते पर। मनसे के जिला सदर भी अपने चंद साथियों के साथ हो गए शिवसेना शिंदे ग्रुप में शामिल। मगर क्या दल बदलने वालों को मिल पाएगा सियासी फायदा, शहरियान का सवाल। तालिब इल्मी के ज़माने ही से बच्चों में जमहूरियत के अक़दार परवान चढ़ाने सेंट्रल प्राइमरी स्कूल इंतज़ामिया ने उठाया अहम कदम। बैलेट पेपर के जरिए लिए स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात। और व्हीकल चोरों पर शिकंजा कसने में क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। 2 सारिक गिरफ्तार, 12 लाख रुपये मालियत की 14 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें भी बरामद। कई और मामलात हल होने का है इम्कान। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।